दोस्तों फ़िलहाल अभी मैं मौजूद हूँ MIT मुज़फ़्फ़रपुर में और यहाँ पर जो इवेंट होने वाला है वो कह सकते हैं कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट मीट, मतलब जो भी इंडस्ट्री है और जो भी इंस्टीट्यूट है तो उन सब का जो है आज मीट है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम जैसे लोगों के लिए जो कि नए स्टार्टअप हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी तो मेरे ख्याल से है ही है। और ये जो ब्लॉग होने वाली है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी जो है होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें ख़ास बात ये है कि इसके ज़रिए अगर आप स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, इंडस्ट्री की दुनिया में अगर आप आना चाहते हैं, बिजनेस कुछ करना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है ये जो है वीडियो होने वाली है। इसलिए आप लोग आखिर वक्त तक आप बने हुए रहिएगा, काफ़ी जो है मज़ा भी दोस्तों आने वाला है। तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे एक ये नॉर्मल फैक्ट्री की तरह इसको ट्रीट नहीं किया जाए, क्योंकि जितने भी सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस पूरे रीजन के, तिरहुत रीजन के और नॉर्थ बिहार के, वो लोग यहाँ पे हैं। सो ये सीरियसनेस दिखाता है सरकार का और इंडस्ट्रियलिस्ट का, इंजीनियरिंग कॉलेज का, दैट वी वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड वी वांट टू कोलैबोरेट विद द स्टूडेंट्स। अभी इसमें क्या है कि बहुत सारे रहते हैं, वाटर ट्रीटमेंट, केमिकल इंजीनियर्स हमें लगते हैं, मैकेनिकल, जितने भी फील्ड्स एंड स्ट्रीम्स जो प्रिंसिपल सर ने दिखाया है, ऑलमोस्ट वी आर कवरिंग ऑल दोस। वी यूज़ हाई एंड इवन टेक्नोलॉजीज लाइक SAP यूज़ करते हैं, जो बिहार में शायद ही कुछ कंपनी यूज़ कर रही है, बड़ी कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल वगैरह यूज़ करती हैं। सो यू नो इवन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दिस इंडस्ट्री. So I would say that we should give Muzaffarpur. So basically our role is to diversify and exchange the knowledge in the field of chemical and other allied disciplines. Nowadays it's an interdisciplinary work. What Chemical Engineering Institute does, it is founded in 1947, 18th May, and I just would like to share information is that, and it is started, one of the founding member out of 13 founding member across the country, one of the from Bihar Inspector of Industries. Let us practice being in an industry, working in an industry, knowing how the things go around in the industrial setup, to be able to ready for it when the challenge comes, so that the growth of this region and the growth of the nation is accelerated even further. And on the other hand, because since we are limited to just one type of industry, we call ourselves, of course, the energy of India. So we are no longer limited to the liquid fuels, or say maybe we have forayed into gas, hydrogen, alternative fuels, even nuclear energy to that extent. But majorly we are dependent on this. I would say the fundamental understanding of fuels that we have, which is based on liquid fuels, that is gasoline, diesel, ATF and all those things. So to get a new perspective of how things are changing, how technology is evolving, we also need to get an input from the faculty members, the technical inputs, the academic inputs, the diverse inputs that you have to give us. So it is going to be a win-win situation for both of us, where we expect that not only MIT but Barauni Refinery is also able to benefit from this mutual association, and we wish to take it further. Of course, I wouldn't like to take too much time over here. 2-3 things to say very quickly. Thank you so much for calling us. Thank you to my ED and RH for inviting me. And let me tell you another short snippet of information if I can share with you. The entire organization of Indian Oil, be it the corporate level, divisional level, or the refinery, Barauni refinery level, it has always been inclusive of some or the others. आपको दिखा दूँ कि अभी MIT में मैं तो अपना लंच कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे किस तरीके से लंच होता है। काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, यहाँ पे अटेंड करके। यहाँ पे होता है क्या कि नए नए लोगों से मिलने के बाद नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, उन आइडियाज़ पे काम करने का मौका मिलता है। और एज ए रिसर्चर
हम लोग को ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है, नो डाउट एट ऑल। ये रहा यहाँ पे लंच चलता हुआ दोस्तों। आगे क्या कुछ होता है बने हुए रहिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें मैं अपडेट देने वाला हूँ दोस्तों। फ़िलहाल अभी मैं मौजूद हूँ MIT मुज़फ़्फ़रपुर में, और आज मैं अपनी जगह ले चुका हूँ। अभी हम लोग लंच करके आ गए हैं। लंच तो मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ का प्रोग्राम काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, और क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है या होने वाला है सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आप इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं, अगर आप स्टार्टअप में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, नया बिजनेस नया काम करने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये जो चीज़ें हैं, आज की जो मेरी जो ब्लॉग होगी काफ़ी आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होने वाली है। तो ये रहा। फाइनली दोस्तों अब लगभग 4 बज चुके हैं और अब हम यहाँ से विदा ले रहे हैं MIT। और आज की जो छोटी सी ब्लॉग रही होगी डेफ़िनेटली बहुत पसंद आई होगी आपको। पसंद आएगी तो जहाँ तक हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी आज आए थे, जो भी हमारे उद्यमी थे, जिनका बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों का टर्नओवर था, इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होने वाला है वो बिहार को होने वाला है मेनली। तो विदा लेते इस बात के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।